Welcome back to digital classes. We are doing the chapter The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saron. That story about the two Armenian boys Aram and Morat, who were cousins. They belonged to a tribe that was famous for its honesty and integrity. And Morat stole a beautiful horse for riding, but they thought that they have not stolen it because it is not for money. But later on, they suffered from the pangs of conscience and they returned to the rightful owner. So, we have done till here. That the distribution of various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. Now we have to start from here. We rode and my cousin Morat sang. Now they started riding the horse and Morat was singing as he was very happy to ride the horse. For all anybody who knew we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged. So for everybody who knew that belongs their neighbors, they knew that they belong to, so they were in the same country, same city. We let the horse run as long as it felt like running, and they let the horse run as it felt like running, means it was not very fast, इतना ही जितना ऐसे लगे कि वो रन कर रहा है. अभी इसकी स्पीड इतनी तेज नहीं थी. At last my cousin Morat said, "Get down, I want to ride alone." "Will you let me ride alone?" I asked. Now at last his cousin Morat, he said he wanted to get a ride alone. अब उसका cousin Morat कहता है कि मुझे अकेले राइड करना है तो तुम नीचे उतर जाओ. तो मैंने भी उससे पूछा कि क्या तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे? "That is up to the horse," my cousin said. "Get down." अब कज़न मॉरिट कहता है कि ये तो हॉर्स की मर्ज़ी है. अब ये हॉर्स की मर्ज़ी पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें राइड करने देगा या नहीं. फ़िलहाल के लिए तुम उतर जाओ. "द हॉर्स विल लेट मी राइड," आई सेड. एंड फिर मैंने कहा, "येस, इट विल लेट मी राइड ऑल्सो." "वी शैल सी," ही सेड. "डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स." नाउ ही सेड दैट वील सी. अब हम देखेंगे वो तो, क्योंकि डोंट फॉरगेट, भूलो मत कि मेरी हॉर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है. "Well," I said, "anyway you have with a horse, I have also." Now I said कि कोई बात नहीं, तुम्हारी है तो मेरी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. "For the sake of your safety," he said, "let us hope so. Get down." "All right," I said, "but remember you have got to let me try to ride alone." अब उसका कज़न मॉरिट कहता है, चलो भगवान के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए ही, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, लेट, ही सैड, लेट अस होप सो, चलो ऐसा ही सोच, होप करने दो, लेट अस होप सो, अभी के लिए तुम उतर जाओ. "ऑल राइट," आई सेड, "बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई अलोन ऑल्सो," कि तुमने मुझे भी अकेले राइड करने के लिए देना है, भूलना नहीं. आई गॉट डाउन एंड my cousin Morad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir, run!" The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Morad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. Now, here he got down. Now Aram, narrator, he got down of the horse, नीचे उतरा और उसने अपने कज़न, उसके कज़न ने उसको हील्स, अपनी हील्स मतलब अपने पैर किस पे किक किए, हॉर्स पे किक किए और ज़ोर से शाउट किया, "वज़ीरे चलो भागो, वज़ीरे रन, बहुत तेज़ दौड़ो." तो हॉर्स को उसने ऐसे एड्रेस किया और हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड. तो हिंड लेग्स होती है बैक लेग्स, जैसे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं हिंड लेग्स हैं. ये जो बैक लेग्स हैं, ये हिंड लेग्स हैं, पीछे की जो लेग्स हैं उन पर खड़ा हो गया. ये देखिए आगे की जो है लेग्स को हवा में उसने उछाल दिया, भागने के लिए उसने तैयारी कर ली, हिंड लेग्स पे खड़ा हो गया. सो द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स, स्नॉर्टेड एंड बर्स्ट इनटू फ्यूरी. और बहुत स्पीड में, बहुत गुस्से में, फ्यूरी होता है एंगर, ऑफ स्पीड मीन्स अपनी फुल स्पीड पकड़ के उसने हवा में दौड़ पड़ा. एंड दैट वॉज द लवलीस्ट, and it was the loveliest thing
आई हैव नरेटर हैज़ एवर सीन, मतलब उसे हॉर्स राइडिंग का इतना शौक है, उसने देखा कि इतनी तेज़ी से उसका ब्रदर चला रहा है, सो उसको बहुत ही खुशी हुई है देख के. माई कज़न मॉरड रेस द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास. नाउ कज़न ने अब उस हॉर्स को ड्राई ग्रास, जो जहाँ पर इरिगेशन डिश था, इरिगेशन जहाँ पे सिंचाई होती है वहाँ पर डिच के पास, उस वहाँ ड्राई ग्रास पे ले गया. ऑन क्रॉस द डिच ऑन दी हॉर्स एंड दैट ही क्रॉस द डिच. हॉर्स पे बैठे बैठे उसने उस डिच को भी क्रॉस कर लिया एंड 5 मिनट के बाद वो रिटर्न हो गया, वापस आ गया और पूरा भीगा हुआ था. द सन वॉज कमिंग अप, अब सूर्योदय हो रहा है धीरे धीरे. तो नाउ इट्स माई टर्न. अब आरम की टर्न थी राइड करने की. माई कज़न मॉरड गॉट ऑफ द हॉर्स. नाउ हिज कज़न मॉरड, वो घोड़े से नीचे उतरा एंड उसने मुझे कहा यू राइट. I leaped to the horse back and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. अब इसने जैसे ही हॉर्स के पीछे लीप किया, लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, उसको पुश किया, तो फॉर अ मोमेंट उसने देखा इट वॉज अ मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल. उसको बहुत ही घबराहट हुई, बहुत डर लगा और वो हॉर्स भी मूव नहीं किया. अब आरम ने उसको समझाया, मॉरड ने समझाया आरम को कि किक इनटू हिज मसल्स, उसके मसल्स पे किक करो. एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का इंतज़ार करो, उसके मसल्स पे किक करो. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट. कि इससे पहले कि सारी दुनिया उठ जाए, हमें उससे पहले इसको वापस रखना है इसके प्लेस पर. आई किक्ड इन टू द मसल ऑफ द हॉर्स. नाउ ही किक द मसल वंस अगेन. इट reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dicran Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. Now, I didn't know what to do. अब it started running so fast, he didn't know what to do. आरम को समझ नहीं आया अब क्या करें. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, अब वो इरिगेशन डिच में जाने की बजाय हॉर्स किस तरफ गया, वो रोड की तरफ. हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड. वाइनयार्ड, वाइनयार्ड होता है अंगूरों की जो बगीचा होता है जहाँ पर वाइनयार्ड, वहाँ पर किसका था वो, डिक्रेन हेलेबियन. वहाँ पर इसने वो चलने लगा, चला गया. वे इट बिगैन टू लीप ओवर द वाइन, और जितनी भी अंगूर की बेलें थी उनको लीप ओवर करने लगा, उनके ऊपर से गुजरने लगा, उनके ऊपर से कूदने लगा. अब द हॉर्स लीप ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. तो अब नरेटर के गिरने से पहले ही उस 7 बेलों के ऊपर से कूद चुका था, लेकिन उसने फिर भी दौड़ना जारी रखा. मीन्स नरेटर को उसने नीचे गिरा दिया और उन 7 जो उसकी वाइन्स की बेल थी, जो अंगूर की बेल थी, उन पे से जंप करता हुआ वो आगे को भाग गया कहीं. माई कज़न मॉरड केम रनिंग राउंड द रोड, और मॉरड पीछे पीछे उनके भागता हुआ अब रोड पर आ गया था. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर. नाउ ही शाउटेड कि मैं तुम्हारे लिए वरिड नहीं हूँ, मैं तो उस हॉर्स के लिए वरिड हूँ जिसे हमें वापस देना है. गॉट टू गेट दैट, हमें हर हालत में उसे ढूंढना होगा. यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ और मैं इस रास्ते जाता हूँ. इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम्हें वो मिल जाए तो बी काइंडली, उसके साथ काइंडली ट्रीट करना, मैं बस आ ही रहा हूँ, नहीं तो वो तुमसे हैंडल नहीं होगा. बी काइंडली, थोड़ा सा काइंड, शांत रहना. I continued down the road and my cousin Morad went across the field toward the irrigation ditch. Now Aram, he continued down the road. अब जिस रोड पे था वो उसी पे चलता रहा और मॉरड वो फील्ड की जो इरिगेशन डिश थी उस ओर चलने लगा. It took him half an hour to find the horse and bring him बैग. अब उसको हाफ एन आवर लग गया था उसको ढूंढने में और उसको वापस लाने में. ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू, आई सेड. अब जब उसने ढूंढ लिया तो उसने कहा जंप ऑन, हॉर्स के ऊपर अब आ जाओ तुम भी. एंड सारी दुनिया उठ गई. द होल वर्ल्ड इज़ अवेक, सब उठ गए हैं अब देखो. व्हाट विल वी डू, आई सेड. अब आरम ने उससे पूछा कि अब हम क्या करेंगे. वेल, ही सेड, विल ईदर टेक हिम बैक ऑन, हाइड हिम और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग. अब वो कहते या तो हम इसको वापस टेक हिम बैक, या तो वापस दे लेते हैं, या फिर इसको कल सुबह की मॉर्निंग तक हम छुपा देते हैं. ही डिडंट साउंड वरिड.
I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. अब टेक हिम बैक मीन्स उसको वापस तो लौटाने से रहा। वो कहता है उसकी बिल्कुल भी, वो उसकी आवाज़ से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो परेशान है। आई न्यू ही वुड हाइड, हाँ मुझे पता था उसको छुपाएगा ही, वापस नहीं देगा अभी। नॉट फॉर अ वाइल, अभी तो बिल्कुल भी किसी भी रेट पर नहीं है। नॉट एट एनी रेट, किसी भी हालत में नहीं देगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड। अब उसने पूछा कि फिर हम कहाँ छुपाएंगे उसे। आई सेड आई नो अ प्लेस, ही सेड ही न्यू अ प्लेस, उसे